پاکستان کے لیے اچھی اور ملک دشمنوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سٹاف لیول معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ اب اس معاہدے کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ یہی نہیں بلکہ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب مزید بھی ملیں گے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ آئی ایم ایف مان گیا ہے کہ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی ہے۔ یہ خبر ملک دشمنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے بھی بری ہے جو چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہو یا ہو کر ختم ہو جائے۔ اس معاہدے کو روکنے کے لیے خط لکھے گئے۔ ابھی حال ہی میں سابق صدر عارف الوی امریکہ مشن پر تھے جہاں وہ پاکستان کی شکایتیں لگاتے رہے۔ پی ٹی آئی کا امریکہ چیپٹر یو ایس ایڈ فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کا بیانیہ بناتا رہا۔ آئی ایم ایف قرضوں کی مخالفت کی گئی اور عسکری قیادت کے خلاف سازشیں رچائی گئیں۔ تحریک انصاف کی سیاست کا یہی دوہرا معیار ہے کہ یہ جماعت ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے وہ اپنے دور اقتدار میں منع کرتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم اس بات کا پرچار کرتے رہے ہیں کہ فوج کے خلاف باتیں کرنے والے بھارتی ایجنٹ ہیں۔ وہ عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ جی پوری مسلم دنیا کا حال دیکھ لیں، جہاں فوج کمزور ہوئی وہاں دشمنوں نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ پاک افواج پر انگلیاں اٹھانے والوں سے بطور وزیر اعظم وہ سوال کیا کرتے تھے کہ انہیں یا ان کی جماعت کو فوج یا کسی ایجنسی سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج وہی سوال ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس ملک کی فوج اور ایجنسی سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بغض فوج میں اتنا اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر یوم پاکستان پر کوئی ترانہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے نا تو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے؟ کیوں قومی ترانوں کے خلاف بھی مہم چلائی جا رہی ہے؟ کیوں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بھارتی ایجنڈے کے تحت پاک افواج سے سوال ہو رہے ہیں؟ آج ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تب فوج حکومت کے پیچھے کھڑی تھی تو ٹھیک تھی اور واہ واہ کی جاتی تھی۔ آج وہی کردار نبھانے پر پوری دنیا میں شکایتیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ سوال یہی سوال ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی اور ان کی پوری جماعت اقتدار کے مزے لوٹ رہی تھی تب یہی فوج اچھی تھی، ادارے ٹھیک تھے، تب نہ کبھی بلوچستان کا ایشو یاد آیا، نہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شیئر کی گئی، نہ یایا خان خوابوں میں آئے اور نہ ہی حکومت اور فوج کا سیم پیج برا لگا۔ آج یہ سب باتیں یاد کرنا اور انہیں بار بار دہرانے کا وہی مطلب ہے جو آپ بتایا کرتے تھے کہ فوج پر انگلیاں اٹھانے والے بھارتی ایجنٹ ہیں، ملک دشمن ہیں اور دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جی سوشل میڈیا پر مہم کے ذریعے اداروں کو بلیک میل کر کے اپنے لیے این آر او لیا جائے۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہر وقت سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، ان گمراہ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سچ ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے۔ وہ باتیں جو یہاں بیٹھ کر ہم آپ کو بتایا کرتے تھے نا، آج علیمہ خان تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، علیمہ خان آج اعتراف کر رہی ہیں کہ آج تک کبھی کسی نے ان سے یا بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی پوچھ رہی تھیں کہ خدارا ایک بار بتائیے تو صحیح کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ کسی بات پر اتفاق کرانا چاہتے ہیں تو کم از کم آ کر بات تو کریں۔ علیمہ خان میڈیا کے ذریعے مقتدر قوتوں کو پیغام پہنچا رہی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی انتظار میں ہے کہ کوئی آ کر ان سے بات کر لے۔ پوچھ رہی تھیں کہ کیا آپ نے بات چیت کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم سے لے لیجئے۔ جی ہاں، پکے والے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہ بات ہم بتا کر تھک گئے ہیں، مگر آپ ہیں کہ ابھی تک نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کب کوئی آئے گا اور دیدار ہوگا۔ اب بھول جائیے، اب کوئی نہیں آنے والا، اب بس وہ اڈیالہ جیل ہے، جیل کا عملہ ہے اور اپنے کیے کا پچھتاوا۔ ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد سیدھی بات میں ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ میری بچی افطاری میں کیا کھاؤ گی؟ ابو میں تو پکوڑے کھاؤں گی۔ آسا ہوا رمضان تیرے واسطے، کھل رہے ہیں برکتوں کے راستے۔ لگتا ہے آج دیہڑی بہت اچھی لگی ہے۔ یہ تو وزیر اعظم نے ہمارے لیے رمضان کا تحفہ بھیجا ہے۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج، گزشتہ سال سے 3 گنا زیادہ رقم،
20 अरब रुपए। मुल्क भर से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के मोबाइल वॉलेट में शफाफियत के साथ बराह रास्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन को 5,000 रुपए की तरसील का मालूमाती पैगाम सिर्फ 9999 से भेजा जाएगा। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज, आप आसानियां बांटें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। इरशादे बारी ताला, और रहमान के बनते तो वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, अकड़ कर नहीं। और जब उनसे जाहिल गुनाहगार बात करते हैं तो उन्हें सलाम कहते हैं और अलग हो जाते हैं। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल अजहर जावेद साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। और मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब ज्वाइन करने के लिए। अजहर जावेद साहब, आई विल टेक द लिबर्टी टू स्टार्ट द शो विद यू। विदाउट एनी मिनी बजट, बड़ी खबर क्या है? कर्जे का मिलना या किसी मुआहदे की तरफ बढ़ना, ये शायद इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी ये खबर है कि किसी भी मिनी बजट के बगैर IMF का स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाना, ये कितनी बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि गुज़िश्ता 2-3 साल पाकिस्तान की मुआशी हालत पर बहुत ज़्यादा परेशान कुन गुजरे हैं। हमने देखा कि बातें हो रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बहुत कम रह गए और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि ईयर बाय ईयर बेहतरी आती जा रही है, और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को इस पे खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में जो मुआशी अशारी है वो बेहतर हो रहे हैं। ये अब जो मुआहदा हुआ है इसमें IMF के साथ होने जा रहा है, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। गो के कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो माशी हालत है इस वक्त, उसके लिए ये कर्ज जो IMF से लेना एक मजबूरी बन चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी क़यादत में जो मुआशी टीम है, उन्होंने अपना जो किरदार है और गुज़िश्ता 1 से 1.5-2 साल में उन्होंने जो काम किए, उसके बाद इन हालात में ये स्टाफ लेवल मुआहदा होना पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। गो कि हमें अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, हमें इस IMF के चुंगल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान और आम आदमी के लिए ये एक रिलीफ का बायस होगा कि मज़ीद महंगाई बढ़ने से रोका जा सके। और जो इसमें IMF के जो अभी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 2015 से लेके अब तक की ये कम से जो निचली सतह की महंगाई की शरह है
تو اب میرا خیال ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی حکومت کو اس میں ریلیف دینا چاہیے. عالمی مارکیٹ میں اس میں کمی آئی ہے, تو یہ ایک مثبت اشاریہ ہیں پاکستان کے لیے. رائٹ. کامران مرتضی صاحب, قرض ایک آئیڈیل چیز نہیں ہے, لیکن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی بیسیکلی پاکستان جس بھور میں پھنسا ہوا تھا, ایک معاشی انسٹیبلٹی کے جس دور میں تھا, آپ کو لگتا ہے کہ شہباز سرکار نے, اس حکومت نے اس کو اس دور سے جو ہے وہ باہر نکالنے میں کامیابی ظاہر کی ہے, اور یہ ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ سیاسی طور پر نہیں تو کم از کم معاشی طور پر تو پاکستان ایک صحیح سمت پر چل نکلا ہے. صورتحال نہیں ہے ہماری. ہم یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں, ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں, اور اس میں ہمارے دوست ملکوں کا کردار ہے, اس میں سعودیز کا کردار ہے, اس میں چائنیز کا کردار ہے, اس میں IMF کا کردار ہے, اور ممالک جو ہے اس طرح سے ہمیں سہارا دیے ہوئے تھامے کھڑے ہیں. تو یہ جو تھامے کھڑے ہونے کی وجہ ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے گرے نہیں ہیں, اور ویسے تو عام پبلک تک جو ہے کوئی ریلیف ابھی تک نہیں پہنچی ہے. اب یہ اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو جنرل اسٹاف لیول پہ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے IMF سے, مگر صرف $1 بلین کے لیے یا $2 بلین کے لیے ٹوٹل. دنیا کی تو ایکسپورٹ جو ہے وہ $100 بلین میں ہوتی ہے, اور وہ آپ سے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, لوگوں کے پاس 500-600 بلین جو ہے نا ریزرو پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے, مگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں, مگر اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ آپ کے دوستوں کا ہے, وہ آپ کو سہارا دیے ہوئے ہیں, وہ اپنے پیسے واپس نہیں مانگ رہے, وہ ری شیڈولنگ ہو جاتی ہے لونز کی. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ریسنٹ پاس میں چائنا نے کیا $2 بلین. تو یہ معاملہ ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ہم اپنے خرچے کم کر سکیں. اس وقت 84 لوگ جو ہے نا وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 84 لوگوں کی کسی ملک میں جو ہے اتنی بڑی کیبنٹ کی ضرورت ہوا کرتی ہے, اس کے اپنے اخراجات ہیں. آپ بھلے کہیں کہ جی اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں لیتے, سیلری نہیں لیتے یا کوئی بینیفٹ نہیں لیتے, مگر پھر بھی ایک وزیر کے پاس کوئی 35 لوگوں کا سٹاف ہوتا ہے. اس کو ذرا کیلکولیٹ کریے پھر ان ٹرمز آف منی, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا خرچہ ایک وزارت کے اوپر آ جاتا ہے. تو برا نہیں ہے, مگر یہ کوئی جوہری اقدامات جو ہے نا پاکستان کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اسپرنٹ ڈسپرنٹ سے کام نہیں چلے گا. میرے ساتھ بنے رہیے, ذرا PTI کا بھی ایک کوئک بٹ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ہر پولیٹیکل سیگمنٹ کی طرف آئیں. ساتھ افسوس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے احمد اویس صاحب, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جن کی یہ کوشش تھی کہ یہ معاہدہ نہ ہو, الٹا یہ کوشش تھی کہ اگر معاہدہ ہو بھی جائے نا تو اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے, تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پھر سے ڈنکا بچا سکے کہ دیکھیں جی یہ حکومت کتنی انکمپیٹنٹ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ IMF ایسا کچھ نہیں کر رہا, بلکہ الٹا وہ تعریف کر رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے. پاکستان کی حکومت کی تعریف ہو رہی ہے اور تسلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں وہ کافی حد تک درست سمت میں ہیں, and it is according to what they wanted. So ابھی ایک اسٹاف لیول کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے, تو اٹس اے گڈ نیوز. ابھی تو اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا, اب تو آپ کم از کم تعریف کریں گے نا احمد اویس صاحب؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ضرورت تھی کہ کہیں سے اس کو کوئی لون ملے, کوئی پیسے ملیں, اور کسی سافٹ شرائط کے اوپر کہ معیشت کو سنبھالا مل سکے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو آپ دیکھیں اس کو, جب آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں تو اس پیسے کا اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک آسائش کے اوپر خرچ کیا جائے گا. آپ تنخواہیں دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی, اسمبلی کے ممبران کی, ان کی مراعات کو دیکھیں, ان کے کنوینس کو دیکھیں کہ ایک آدمی کی, ابھی پیچھے میں پڑھ رہا تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے اس کی گاڑی کے لیے. یہ ایک طرف یہ ڈسپیرٹی جو معاشرے میں آ رہی ہے, ابھی آپ کو اندازہ ہے اس کا, یا IMF کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ پاکستان میں جو پرسنٹیج بلو پاورٹی لائن ہے وہ اب جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو وہ 45% کے قریب تھی, اب وہ 55% سے تجاوز کر گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 کروڑ سے زیادہ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. وہ جانور سے بدتر زندگی ہے. کبھی آپ نے کبھی سوچا کہ وہ زندگی کیا ہے؟ اور وہ لوگ ہمارے جیسے ہی ہیں, ان کے دل سینے میں بھی یہی دل ہے, ان کے شریانوں میں بھی یہی سرخ خون ہے. وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت اور ان کو اچھا دیکھنا اور اونچا دیکھنا چاہتے ہیں.
لیکن کوئی وسائل نہیں ہے اور حکومت نے کوئی توجہ، آپ 1 سال کی سے زیادہ کی حکومت ہو گئی، کوئی ایک پالیسی بتا دی جہاں یہ ثابت ہو کہ ان کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ بنایا گیا ہے، کوئی پروگرام کو پالیسی بنائی گئی ہے، اور یہ تو آ گیا کہ آئی ایم ایف سے آپ کو مل رہے ہیں پیسے، لیکن وہ ایک بہت بڑی جو میجورٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے سٹیٹس آف لائف کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا پروجیکٹ سامنے آیا ہو تو وہ بتائیے، اس سے پتہ لگے گا کہ یہ نمائندہ حکومت ہے. ورنہ تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں لینی اور بڑی بڑی جگہوں پہ آسائش کے اوپر اتنا خرچ کر دینا، اور یہ پیسہ جو ہے ان لوگوں کا پیسہ شامل ہے. کبھی آپ نے یہ غور کریں کہ یہ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہ ٹیکس نیشنل ایکسچیکر میں جب آتا ہے تو آپ دیکھیے کس لیوش اس کو خرچ کیا جاتا ہے. جب تک یہ احساس ہم میں ڈیولپ نہیں ہوگا پاکستان کے حالات نہیں سدھریں گے. ابھی دیکھیں نا جو حالات ہیں، جو انٹر پروونسی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو بلوچستان کے اندر، جو کے پی کے اندر، جو افغانستان سے کنفرنٹیشن کی صورت ڈیولپ ہوئی ہے، ہماری کوئی پالیسیز میں آپ کو کنسسٹنسی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. مثلا افغانستان کے ساتھ جو بلوچستان اور کے پی کے کو سامنے رکھیں، اور سینکڑوں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ابھی جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان کا نکالنے کا اعلان کیا، جب سے لے کے اب تک سینکڑوں وہاں سے حملے ہو چکے ہیں پاکستان کے اوپر، اور یہ ٹیررسٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اور اس میں ہمارے مسلح افواج کے نوجوان آفیسر بھی شہید ہوئے ہیں، کامن لوگ جو ہیں وہاں کے رہنے والے بھی ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، املاک کا نقصان ہوا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ معاملات کو سیدھا کیسے کرنا ہے. انڈیا کا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ جو ہے اس وقت یہ بڑا خطرناک ہے، ہم اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ. اور لیکن میرا نہیں خیال، دیکھیے اگر ذرا بھی خیال ہوتا تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اب انہوں نے ان حالات میں افغانستان کو چینی جو ہے اتنی ایکسپورٹ کر دی کہ پاکستان میں قلت ہو گئی چینی کی اور قیمت بڑھ گئی. جب بہت شور مچا تو کہنے لگے کہ انہوں نے چینی جب ایکسپورٹ کر رہے تھے انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ 124 روپے پر کے جی سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے قیمت، اور اب یہ بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ارجنسی میں امپورٹ کی ہے. اور دیکھیے ایک جو دشمنی دکھا رہے ہیں ان سے ان کو آپ نے ایکسپورٹ کر دی، اور جو پاکستان کے بلڈ اینیمی ہے انڈیا، اس کے تھرو آپ نے امپورٹ کر دی. یہ کیا پالیسی ہے ہماری؟ یہ سارے آسپیکٹ کو ہم نے غور کرنا ہے. یہ جو بات خوش آئند ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے. ہماری زیرو پوائنٹ پالیسی ہے. کنسسٹنسی آف پالیسی. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ ٹو اظہر جاوید صاحب. اظہر جاوید صاحب، کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا فقدان جو ہے بطور پاکستان تحریک انصاف کے اس حکومت میں نظر آ رہا ہے. ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجئے، اور دوسری بات یہ کہ سیاسی محاذ جو ہے وہ کافی گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہ اگر ہم سیاسی محاذ کی بات کریں، اور اس میں دور کوئی بھی ہو، ابھی کا دور ہو یا وہ پی ڈی ایم والا دور ہو، اس کے اندر ہم لوگوں نے مولانا صاحب کا جو رول ہے وہ بہت اہم ترین دیکھا ہے. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مولانا صاحب ہے ان کا پلڑا کس طرف ہے؟ کیونکہ کلیم تو دونوں پارٹیز کی طرف سے آ رہا ہے، دونوں فریقین کی بیسی طرف سے آ رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. جی بالکل، میں دونوں پوائنٹ پر ایڈریس کرتا ہوں. پہلے بات انہوں نے کی پالیسیوں کے تسلسل کی. یہ ایک ایسا ملک جہاں 2014 سے لے کے اب تک دھرنوں کی سیاست کی گئی ہو، جس میں مار داڑ کی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جس میں جو ایک چلتی ہوئی حکومت جو 2017 میں سب سے اچھے معاشی اشاریے تھے، جب معاشی طور پر ترقی ہو رہی تھی، وہاں پر جو کچھ ہوا، آپ نے پاناما کے نام پر جو اقامہ پہ ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال دیا گیا ہو، اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال، وہاں پہ آپ پالیسیوں کی تسلسل کے لیے آپ بیٹھے تو صحیح، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. جبکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ایک سیاستدان ہیں وہ مسلسل ان سے بیٹھنے کی بھی بات کی گئی. ایون فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے شہباز
शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। और मुसलसल जब वो वजीर आजम भी रहे तो उन्होंने अपोजिशन के साथ बात करने की कोशिश नहीं की। अब गुज़िश्ता 3-3.5 साल तकरीबन हो गए हैं, तो एक तसलसल हमें इस लिहाज से नजर आ रहा है कि पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। अब जो गुज़िश्ता 1 साल तकरीबन गुजर रहा है उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात और पाकिस्तान में इकोनॉमी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें की हैं और वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इसका फायदा आम आदमी होगा। हमें इससे पहले हमने देखा कि एक सियासी जमात ने जो कुछ कहा कि IMF से मुआहदे के खिलाफ खत भी लिखे, वो एक सूबाई हुकूमत ने भी लिखे, तो पॉलिसियों को तसलसल कम अज कम मुआशी सूरत हाल पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सियासी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुदब्बर तरीन सियासतदानों में उनका शुमार होता है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा है। उनके साथ जब भी उन्होंने कोई अहम मामला हुआ है पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, वो उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त पर अपना मुफाद नहीं देखा। तो मेरा ख्याल है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो किसी भी ऐसी इंतशार पसंदाना सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो तमाम लोगों को जोड़ के बिठाने के हामी हैं। और हमने जो आईनी तरमीम थी उसमें भी देखा कि उनका जो किरदार रहा, उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी वो साथ लेके चले, उनके साथ मुज़ाकरात किए, तमाम बातें तय हुई। ये बात अलग है कि अडयाला जेल में बैठे हुए जो लीडर हैं उन्होंने उन चीज़ों को भी, उनके कहे हुए अल्फाज को भी वो नहीं माना, और उसके बाद एन वक्त पर तहरीक इंसाफ बैकआउट कर गई। तो मौलाना फैज़ल रहमान का जो किरदार है वो सबको बिठा सकते हैं, और हुकूमत को भी चाहिए। मेरा ख्याल है इस वक्त जो किरदार है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह लेके चल रहे हैं इस वक्त सूरत हाल को, तो मौलाना फजल रहमान जैसी कद्दावर शख्सियत अगर उनके साथ बैठती है, तमाम बात होती है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं, वो भी बैठते हैं, तो ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। मौलाना साहब के हवाले से आपका जो एनालिसिस है वो किस हद तक एक्यूरेट है? मैं अभी अजहर जावेद साहब आपको पता चल जाता है, बिकॉज डेफिनेटली कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ दोबारा से बन चुके हैं। कामरान साहब, अगेन रोल ऑफ मौलाना साहब, पीडीएम का दौर हो, जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो पीडीएम के वो रूहे रवा थे, बल्कि लीड कर रहे थे, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, या अब का दौर हो, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोग अपना वजन किस पलड़े में डालेंगे? क्योंकि क्लेम हुकूमत का भी है। अब अजहर जावेद साहब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। मौलाना साहब की ये एक उम्मीद है कि ही विल नॉट गो ऑन द स्लिपरी ग्राउंड्स। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ और क्लेम है, वो तो ये कहते हैं कि आपके साथ बातचीत ऑलमोस्ट हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बातचीत हमारी आगे बढ़ी है बहुत ज्यादा उनके साथ, मगर अभी तक स्टिल जो है ना कोई डिसीजन नहीं लिया गया। डिसीजन जो है हमारी पार्टी के अदारों से जो है होके निकलता है। जैसे वो हमें परमिट करेंगे, जैसे वो अप्रूवल देंगे, उस तरह से आगे चला जाएगा। क्योंकि 20 अप्रैल को जो है वो हमारी जनरल काउंसिल का इजलास है। तो द मोमेंट जनरल काउंसिल का इजलास हो गया, अगर परमिट किया तो फिर जो है उनके साथ चल सकते हैं। अगर परमिट नहीं किया, अपना इंडिपेंडेंट तहरीक के लाने का कहा तो इंडिपेंडेंट तहरीक हो सकती है। आराम से खामोश बैठने का कहा तो फिर खामोश बैठा जा सकता है। ये 2-3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, मामला फंसा कहाँ हुआ है? मामला कहीं नहीं फंसा हुआ। बात यह है कि वो कुछ माजी हमारा आपस में जो है इनका तल्ख रहा हुआ है। एक तो वो मामला है, फिर उसके बाद जो है मौलाना ने इंगेज किया इनको 26 अमेंडमेंट पे। फिर 26 अमेंडमेंट वाला मामला जब हो गया तो फिर उसके बाद कहा कि हमने तो कोई किसी तरह से किसी उसमें शरीक ही नहीं हुए। हर मामले में शरीक हुआ, मैं खुद भी जो है उसमें, चूँकि हर वक्त साथ था मामले में, तो हर चीज़ में उनको एतमाद में लिया गया और उनकी राय को मुकदम जाना हमने, कम से कम हमने, और उसमें जो है उसके मुताबिक जो है हम प्रेस करते रहे गवर्नमेंट को। मगर वो बजाय उसके किरदार को मानने के, फिर जो है ना उसके बाद ये कहना कि जी हमारा तो कोई किरदार ही नहीं है, हम तो कुछ भी इस मामले में जो है ना किसी तरह से भी शरीक नहीं है, तो ये ज्यादती हो जाती है। इंटरेस्टिंग। इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जिस सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक।
की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात, नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर का आगाज। ये रजिस्टर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिनसी तशद्दुद में मुलव्विस आदि मुजरिमों की निगरानी और तफ्तीश का अहल बनाता है। हुकूमती कोशिशों का मकसद एंटी रेप एक्ट 2021 के यकीनी नफाज के जरिए जिनसी तशद्दुद का खात्मा है, ताकि आने वाली नस्लों को मिले महफूज तरीन मुस्तकबिल। कानून पर एतमाद महफूज मुआशरे की बुनियाद। अवामी आगाही का ये पैगाम वज़ारत कानून और इंसाफ, नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो के ताउन से पेश किया गया है। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। रमज़ानुल मुबारक बड़ी तरबियत करता है अपने आप को ख्वाहिशात से रोकने की। ये ख़ास मौका फराहम करता है कि जब हर चीज़ मौजूद है, खाने पीने की बावर्ची खाना भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नहीं जा रहा, अपने आप को ख्वाहिशात से रोका हुआ है, तो इसको पूरे साल के लिए अपनी तबीयत पर लागू करें। ज़िंदगी में ज़ुहद कमाया जाए। ये जो जाहिद होते हैं, ज़ुहद कमाने वाले लोग होते हैं, ये कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो दुनिया में रह के भी दुनियावी लज्जात को तर्क करते हैं, जो रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स की ख्वाहिश से रुका। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, फरमाया बेशक फिर उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूँ। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, तो ये नाशुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएंगी। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी तक सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी अज़र जावेद साहब, अहमद अवैस साहब एंड कामरान मुर्तज़ा साहब। अहमद अवैस साहब, सूरत हाल आपके सामने है और जानना आपसे ये था कि जो मौलाना साहब हैं उनको आप ऐसी क्या ऑफर करेंगे, ये जब भी आप लोग की मुलाकात होनी है, ये 20 अप्रैल तक, अगर जिस तरह से मौलाना साहब की पार्टी कह रही है कि दिल वेट एंड वॉच, आपके पास क्या कार्ड्स हैं? क्या उनको ऐसा आप ऑफर करेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम जब पीडीएम वाले मामले चल रहे थे तो तब तो तमाम जमातों ने इनको सदर बना दिया था पीडीएम का, तो आप इनको क्या ऑफर करेंगे? एक तो बात बड़ी मुस्तनद है जिसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना ने सियासत में जो मुदब्बराना अंदाज उनका सामने आया है और जिस तदब्बुर के साथ और जिस अक्ल फहम के साथ उन्होंने मामलात में खासतौर पर तरमीम का जब मसला शुरू हुआ था, पहला फेज था और वहां पे उन्होंने उनको रोका और फिर उसको उस दिन होने नहीं दी, आगे डेट पड़ी, फिर आगे हुआ और उसके बाद जो बलोचिस्तान के इशू के ऊपर भी जो मैंने उनकी तकरीर सुनी है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, तो मेरा ख्याल में बड़ी मैच्योरिटी उनकी सोच में, उनकी सियासत के अंदर, और इस लिहाज से उनका जब भी अगर ग्रैंड अलायंस की शक्ल बन गई इकट्ठे और वो यकीनन बनेगी तो उस सूरत में उनका बड़ा अहम किरदार ही होगा और उनका अहम पोजीशन ही होगी जो एक्सेप्टेबल होगी पीटीआई को भी। अभी इसको मैं आपके सामने मैं तो बता नहीं सकता, ये तो जिस वक्त इमरान खान और ये सब एग्री करके उसको जब ये बात सामने आ जाएगी तो सबके सामने खुल के आ जाएगी, हारे को मालूम हो जाएगा। लेकिन ये बात तो पक्की है और मुस्तनद है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस अंदाज में मैंने उनको
सियासतदान की रूप में जो मेजोरिटी देखी है उनके अंदर, मुझे पाकिस्तान के बहुत कम सियासतदानों में वो मेजोरिटी और वो प्रैग्मेटिज्म जिसे कहते हैं कि वो नजर आई। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये जो ग्रैंड अलायंस भी बनेगा उनका बड़ी कलीदी उनकी हैसियत होगी, बड़ा खास किरदार होगा उसके अंदर, और उनकी सोच और उनकी जो उसमें सब इस हद तक आप मौलाना साहब को खास किरदार देंगे इस अलायंस के अंदर कि वो आपकी पार्टी के हवाले से भी फैसले करेंगे, आप लोग के बिहाफ पर भी वो फैसले करेंगे, इस हद तक उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन देंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, जब भी अलायंस बनता है ना, ये मूवमेंट की शक्ल होती है, और मूवमेंट का खासा ये होता है कि वो यूनाइट करते हैं, वो मुख्तलिफ मकतब फिक्र के जो सियासी ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको एक ब्रॉड बेस्ड एजेंडा पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर देती है। ठीक है। इसीलिए मूवमेंट जो है बड़ी फोर्सफुल होती है, और यही सूरत हाल जो है अब भी होगी, और उसमें मतवा नजर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उजागर करना, या किसी एक के व्यू पॉइंट को लेके आगे चलना, या किसी एक की जो उसमें किसी एक पार्टी का जो है उसको हाईलाइट करना, उसके एजेंडा को, ये नहीं होता। मूवमेंट जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर होती है, और उसकी सोच का अंदाज भी जो है और एजेंडा जिसके ऊपर सब एग्री करते हैं, वो मिनिमम वो यही होता है कि जिसमें नेशन के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या बेहतर है, और पाकिस्तान की खैर ख्वाह और बका और सालमियत के लिए क्या बेहतर है। यही यहाँ भी कंसिडरेशन जो है वो यकीनन यही होगी जब ये ग्रैंड अलायंस की शक्ल बनेगी, और उसमें मौलाना का एक बड़ा अहम रोल मुझे नजर आ रहा है। बाकी जो शक्ल सामने आएगी वो तो आई कैन नॉट फोरटेल राइट नाउ। ठीक है। अहमद अवैस साहब, एक छोटी सी मूवमेंट की खबरें ये ईद के तीनों दिनों में पे भी आ रही हैं, और वो पता चल रहा है कि आप लोग के जो कारकुन हैं वो अडयाला जेल के बाहर ईद के तीनों दिन जाएंगे इजहार यकजहती के लिए, तो कर पाएंगे सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी आस्क यू दिस वेरी स्ट्रेट, सीधी बात में आप बैठे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 बंदे चले जाएं और फिर वो बजाय इसके कि आपने इजहार यकजहती करना था उल्टा डिप्रेशन लेके वापस आ जाएं। नहीं, देखिए, ये तो देखिए एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है ना कि इमरान खान जेल में है, तो खुशी के इस मौका के ऊपर, ईद के ऊपर, ये एक इजहार यकजहती है कि वो कारकुन जो हैं वो वहां पे जाएं, इकट्ठे होंगे, और वहां पे वो अपनी एलिजेंस जो है, अपना कॉन्फिडेंस जो है और अपना एतमाद जो है वो अपने लीडर पे शो करेंगे, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो जेल में हैं, एक असूल के ऊपर जेल में हैं, और हम उनके ऊपर वो पूरा हमारा कॉन्फिडेंस उनके साथ है, और हम उनको पाकिस्तान का एक मुहब्ब वतन शख्स समझते हुए, लीडर समझते हुए, हम उनकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर हमें पूरा एतमाद है। ये बुनियाद उसकी तो ये होगी ना, उसमें कोई पेरोकियल स्लोगन नहीं होगा, कोई और कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ पीपल डोंट मैटर फॉर यू, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, कि 4 बंदे भी अगर वहां पे अडयाला जेल के बाहर खड़े हो जाएंगे तो आपको लगता है कि आपका जो पर्पस है वो आपने अचीव कर लिया? देखिए, आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर भी। अभी मुझे इस वक्त मैं क्या बताऊं आपको कि नंबर की क्या पोजीशन होगी, लेकिन जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो तो नेशन वाइड है, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर आप कह दें या मैं कह दूंगी या कोई और कह दे कि जी वो तो उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, अब तो जी शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी हो गई है, या नून लीग की पॉपुलैरिटी हो गई है, तो ये इस झूठ को कोई कबूल नहीं करेगा। ये तो एक हकीकत है सामने हमारे। अच्छा, क्योंकि एक असूल के ऊपर ये पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है कि कोई बंदा एक असूल के ऊपर जेल में बैठा हुआ है और वो कोई उसने माफीनामा नहीं लिखा, वो नहीं झुक गया कि ना उसने कहा कि जी मैं सियासत से कान पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ और मुल्क छोड़ के चला जाता हूँ जी, और आप मुझे इजाजत दे दें, मुल्क छोड़ के 10 साल के बाद आऊंगा। हमने तो नहीं कोई ऐसा कहा। इसी थॉट को जरा होल्ड कर ले, मैं वापस आती हूँ क्योंकि अजहर जावेद साहब बड़े बेकरार हो रहे हैं, वो कुछ कहना भी चाहते हैं और मैं भी उनसे सवाल करना चाहती हूँ। मेरे साथ रहिएगा जरा। अजहर जावेद साहब, सिचुएशन जो अभी इस शो में बंद करके मेरे सामने आई है, मौलाना साहब की पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने है, PTI का मौक़िफ़ आपके सामने है, मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत को
टफ टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं, दे पाते नहीं दे पाते ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। लेकिन ईद के बाद क्या कोई बदला सा पाकिस्तान आपको नजर आएगा? बदली सी आपको पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नजर आएंगी? साहब आपकी आवाज जी। तो देखें, पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल, आम आदमी को सबसे बड़ा मसला है उसके खाने का, उसकी महंगाई का। उसे पॉलिटिकल पार्टीज से इस वक्त किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कितनी कॉल्स दी हैं एहतजाज की, कितनी उन्होंने पूरे का पूरा सूबा उठा के ले आए। उसमें कितने लोग थे? 5-10 हज़ार लोग, वो भी सरकारी मुलाजिम खर्चे पे ला के उन्होंने इस्लामाबाद पे धावा बोला। आम आदमी ला ताल्लुक हो चुका है। आम आदमी अब महंगाई के बारे में फिक्रमंद है, वो एहतजाज करने के बारे में नहीं सोचता। तो मेरा ख्याल है कि अब मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की टेक ऑफ कर रही है, तो सियासी जमातों को भी इसका एहसास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कई ग्रुप बने हुए हैं और इन ग्रुपिंग की वजह से कुछ जो सोशल मीडिया के नासिर बाहर बैठे हुए हैं वो उनकी अपनी लाइन है। ग्रुपिंग जो अलीमा खान साहिबा का ग्रुप है, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का ग्रुप है, तो हर बंदा अपनी लाइन पे आ रहा है। तो किसी किस्म का कोई एहतजाज मैं तो नहीं देख रहा। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान का सबसे बड़ा एतराज तो KPK में धांधली पे है। उनका ये कहना है कि KPK में धांधली के क्या तहरीक इंसाफ इस चीज को मानेगी, मान के उनको सरबराही देगी उस एहतजाज की? और क्या वो एहतजाज पेशावर में भी होगा सूबाई हुकूमत के खिलाफ कि ये हुकूमत भी धांधली से बनी है? क्या मौलाना फजल रहमान वहां भी धरना देंगे? क्या उनका इतराज पेशावर की तरफ उनके एहतजाज का रुख होगा? और क्या तहरीक इंसाफ उस एहतजाज में भी शरीक होगी? तो मेरा ख्याल है ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। मौलाना फजल रहमान किसी किस्म की ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। एहतजाज कोई ग्रैंड अलायंस अगर बन भी जाता है तो बात अभी कामरान मुर्तजा साहब ने भी यही की कि उनकी जो बातें थी आईनी तरमीम के बाद वो भी जो तहरीक इंसाफ ने होनी की। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है जो खास तौर पर इमरान खान साहब हैं, उन पे किसी किस्म का कोई जो कहा यह जाता है कि वो किसी की बात को रख नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे बहुत चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं। बात है, इन्होंने बात की अवैस साहब ने चीजें क्या, एक मिनट सब डिफरेंट सीधी बात में बैठे ना, सीधी बात करें। डिफरेंट क्या नजर आ रही है? कुछ नहीं कर पाएंगे, हुकूमत सेफ है, कोई एहतजाज नहीं होना, क्या डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि यह इसी तरह ही चलेगा, तहरीक इंसाफ का कारकुन बाहर नहीं निकलेगा और मौलाना फजल रहमान अपने कारकुन को इनकी जंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ अगर वो कहते हैं कि KPK में ज्यादती हुई है तो सबसे पहले KPK में उसको एड्रेस किया जाए। किसी किस्म का कोई एहतजाज जो है, मुझे देखें 20 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान के जो पार्टी है उसका जनरल कौंसिल का इजलास है, उसमें अगर कोई डिसाइड होता है, मई अप्रैल में जाके ये मीटिंग्स होती हैं, मिलते हैं। मई जून में तो इतनी शदीद गर्मी होती है, एहतजाज किसने करना है? उसके बाद जब बात चली जाती है अगस्त अक्टूबर तक, तो ये 3 महीने तो एहतजाज के लिए, मई से जून जुलाई अगस्त तक वैसे ही मौजू नहीं है। तो एहतजाज किसी किस्म का नहीं हो रहा। वो इमरान खान साहब ने कहा कि जो बाहर सड़कें गर्म होंगी तो सड़कें वाकई गर्म होंगी, उस पर किसी किस्म का कोई वर्कर नजर नहीं आएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे पॉपुलर है। सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी और ऑन ग्राउंड पॉपुलैरिटी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट है या जो वर्कर्स हैं वो मौलाना फजल रहमान के पास है। तहरीक इंसाफ इस वक्त ये साबित हो चुका है कि सोशल मीडिया पर जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वो भी अब नीचे आ रही है। ऑन ग्राउंड तो उनके हालात देख लिए कई दफा। तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब, सॉरी आज़ाद साहब, आप इसमें सच अच्छी बात आपने कर दी। ये चीज भी ऐड कर लें कि बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें नहीं हैं, बिकॉज आरिफ अलवी साहब क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इस मुल्क के सदर रह चुके हैं और जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके हवाले से बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, बिकॉज जो अमेरिकन चैप्टर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी एंड गिल साहब चला रहे हैं, वो उसके अंदर जिस तरीके से पाक फौज के खिलाफ मवाद इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, जिस तरह से मजीद उसको फैला रहे हैं, इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या, ये तो सीधी मुल्क से जो एक आप रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इसको आप किस चीज़ का नाम देंगे? ये क्या पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है? ये आर्मी चीफ किसका है? पाकिस्तान का है ना। वहाँ पे पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगवाने की बात हो रही है। यहाँ इनका पाबंदियाँ का क्या, आप देखें पाबंदियों के बाद आम आदमी की सूरत हाल जो वो खराब होगी। इस वक्त जो PTI का जो सोशल मीडिया विंग है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो इस वक्त ना पार्टी को
पाकिस्तान में उसकी कोई काम है, वो उसको किसी किस्म की खिदमत कर रहा है, ना पाकिस्तान की कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए तहरीक इंसाफ के लोग खुद उससे खाइफ हैं, वो नहीं चाहते कि जो तहरीक इंसाफ अमेरिका के सोशल मीडिया विंग के लोग कर रहे हैं वो हो। इस वक्त पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान को माशी सूरत हाल में बेहतरी लाने की जरूरत है। और इस वक्त जो दहशतगर्दी की जंग है, ये JUI से ज्यादा कौन जानता है कि KPK और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें पाक फौज जो लड़ाई लड़ रही है उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर तमाम सियासी जमातों को उसकी सपोर्ट हासिल होना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त किसी भी ऐसी जंग का, सियासी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पाकिस्तान में मजीद बेचैनी या बदअमनी लेके आए। और इस वक्त सूरत अभी इन्होंने बात की कि इनको ये जो डील लेने से इनकार किया, आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि अलीमा खान साहबा कहती है कि हमसे तो वो बात ही नहीं कर रहा। और ये बात मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि बरतानिया से कोशिशें हुई, मोहतरमा जमामा खान साहबा ने कोशिशें की, बरतानवी हुकूमत से मिलकर कोशिशें हुई कि खान साहब को NRO दिया जाए, लेकिन हमारी रियासत ये कहती है पहले 9 मई का माफी मांगे उसके बाद बात होगी। रियासत की तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। तो ये बातें सिर्फ अपने कारकुन को तसल्ली देने के लिए की जा रही हैं जी, वो उन्होंने किसी किस्म का मुआहदा करने से इनकार कर दिया। आज अलीमा खान साहबा की जो सारी टॉक है, जो बात है, वो इस बात की अक्कासी है कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है जो कि रियासत मुखालिफ है, फौज मुखालिफ है, अस्करी क़यादत के अगेंस्ट है, क्या जब भी आपकी कभी PTI से रिसेंट टाइम्स में मुलाकात हुई है तो आपने इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं उनको? नहीं, ऐसा है कि हम इनका कोई मीडिया जो सोशल मीडिया वो है उसको फॉलो नहीं इतना ज़्यादा करते। हमें नहीं पता कि ये जो ना क्या मटीरियल जो है ये इसको वो करते हैं, लॉन्च करते हैं। हमारा पाकिस्तान की जहाँ तक बात होगी, पाकिस्तान के साथ हमारी कमिटमेंट है। पाकिस्तान के अदारों की जब बात होगी हम उनका एहतराम करते हैं। हमारा जो इख्तिलाफ अदारों के साथ आता है वो सिर्फ इस हद तक हम उनको कहते हैं कि बाय द बुक चलें, और हम भी जो ना कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक चलना चाहते हैं। आप भी आप जब, सॉरी टू कट यू कामरान साहब, लेकिन जब आप कहते हैं कि बाय द बुक चलें तो अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपगेशन करना सोशल मीडिया के ऊपर, ये तो बाय द बुक चलना नहीं है। एटलीस्ट द बुक व्हिच आई हैव रेड सर। सबके लिए हमारा मशवरा यही है कि दस्तूर के मुताबिक चले, बाय द बुक चले, उसी में हम सब की आफियत है। अगर कहीं पे अगर उस किताब में कोई खामी है, उसमें उस प्रोविजन में कोई खामी है, तो उस पर बैठ के जो ना उसको डेलिब्रेट कर लें और उस खामी को दूर किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती है। मगर जब तक वो किताब में उसी हालत में कोई प्रोविजन मौजूद है, हमको उसका एहतराम करना है और किताब का एहतराम करते हुए उसी के मुताबिकत में चलना है। तो ये सारा कुछ जो है ये मामला हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे भी बढ़ रहे हैं, PTI के भी बढ़ रहे हैं, मगर ये कंट्राडिक्शन जो हमारे दरमियान मौजूद है वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में मौजूद है। वो कंट्राडिक्शन जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्राडिक्शन को किसी तरह से आपस में इसका कोई हल निकालें, मगर कंट्राडिक्शन हमारे और उनके दरमियान मौजूद यकीनन है। ऑल राइट अहमद, अब ऐसा फाइनल जो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट दें वो इस पे ज़रूर दें, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बात की थी कि भाई वो असूल पे खड़े हैं आपके जो खान साहब हैं और वो माफ़ीनामा नहीं लिख रहे, लेकिन अलीमा खान साहिबा तो कुछ और ही स्टोरी बता रही हैं, जिसको अभी आज़ाद जावेद साहब ने भी कहा कि जो अलीमा खान साहिबा हैं वो अडयाला से जब बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, खुदारा हमसे बात करें, अगर आप कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए बात तो करें, हमारे ज़रिए ही बात कर लें। तो ये किसके लिए फिर था? देखिए, अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बाय दी बुक चलें। हम भी यही चाहते हैं और यही हमारी तो सारी पूरी स्ट्रगल ये है कि आइन के मुताबिक चलें। हमें कोई एतराज नहीं है, हर अदारा अपने अपने प्रेमिसेस में रहे, उसे तजावुज़ ना करे। तजावुज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखें, गवर्नमेंट जो एग्जेक्टिव है ना, आइन के तहत एग्जेक्टिव के पार्लियामेंट के बाद एग्जेक्टिव जो एनफोर्स करती है, कानून साजी जो हुई होती है उसको एनफोर्स करती है और पॉलिसीज की और को इम्प्लीमेंट करती है। उसका काम है कि फंडामेंटल राइट्स के जो है उसको हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना। अगर वो इसमें पहलूतही करते हैं देन अदालत क्यों, इसीलिए जज का जो ओथ होता है उसके अंदर भी ये लिखा है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो यही करना है। सिमिलरली आर्म फोर्सेस का जो ओथ है अगर आप पढ़ें तो उसमें एक सेंटेंस है कि आई विल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन पॉलिटिक्स। तो अगर इसी तरह से सब चलेंगे तो प्रॉब्लम भी कोई ना आती।
اب آپ دیکھیں کہ کیا اس طرح چلیں ہم نہیں چلے. ہم جو ہے ایگزیکٹو کو تو ہم نے جو ہے ایک ادارے نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور سارا ملک چلانا شروع کر دیا. آئین نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ, انہوں نے کہا نہیں کرواتے. آئین نے کہا کہ جب پارلیمنٹ بھی چل رہی تھی ایک کرنل کے ذریعے, آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جب دو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں اور الیکشن کے متعلق آیا تھا میٹر کہ جی آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں, آئین یہ کہتا ہے, تو کیوں نے روکا تھا, کیوں نہیں ہونے دیا تھا الیکشن 90 دن کے؟ پاکستان کے آئین کو ڈیفائی کرنے والا کون تھا؟ اور اس کے بعد جو آئین کے تحت جو ہے آپ جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے الیکشن سمبل کے ساتھ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور وہ اپنی کیمپین کر سکیں. کس نے روکا تھا کہ پی ٹی آئی کی ان کو کالم بھی نہیں ہوگی, اس کا الیکشن سمبل بھی نہیں ہوگا, اس کو الیکشن میں کھڑا کرنے کی اجازت نہیں کسی کی ہوگی. چلیے, اور اس کا فیصلہ ایکچولی پتہ کیا پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چوک آپ سے بھی ہوئی, نشان کیوں چھینا گیا, وہ پوری سٹوری ہمارے سامنے. بلکہ 2-3 دن تو یہ کارروائی عدالتی جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ چلتی رہی ہے, لیکن آج اس بارے میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. بڑی معذرت, لیکن مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. لک آفٹر یورسیلف. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.